भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् विशेष सत्र दैनिक अभिनव सबसे पहली बार तेलंगाना में हरिद्वार से डायरेक्ट लाइव सेमिनार के माध्यम से जूम के माध्यम से वर्चुअल अभ्यास सेशन हम समझेंगे और आपका आशीर्वाद बहुत अच्छा आप हमें मौका दिया है। आपको बहुत संकल्पित होकर जुड़े हैं निरंतर रहना, और आपके कुछ प्रश्न भी रहते हैं यज्ञ के विषय में, तो वो भी आप जब समय देंगे तो आप पूछ लेना, कोई विषय में आपको जो प्रश्न पूछना है। ये जो होते हैं पूरी दुनिया में भी, देश में भी, प्रोग्राम भी आप लोग अच्छे प्रकार से तो सबसे पहले हम हमारे राज्य के संगठन मंत्री अनुरोध करते हैं आज की सत्र का। आप सभी का स्वागत है। मेरा प्रथम वंदन योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को। और आज तेलंगाना योग साधकों को ये सौभाग्य के विषय है, परम पूज्य स्वामी जी का शिष्य द्वय पूज्य यज्ञदेव जी, पूज्य प्रणव देव जी, दोनों उपस्थिति है आज का कार्यक्रम में। आप दोनों को तेलंगाना राज्य के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति के ओर से और सभी साधकों के ओर से, तेलंगाना राज्य का प्रजा की ओर से आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो ये रोज के लिए आया हूँ, मैं कई 5 मिनट के लिए आया हूँ, जाना था, तो इसके लिए हमारे ठीक है ठीक है ठीक है चिंता और यज्ञ के विषय में तो इसलिए बताएंगे। जी 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 ठीक है। మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అసిస్టెంట్ యోగా టీచర్ ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ ఆన్లైన్లో ఈ కోవిడ్ సందర్భంలో మనం అంతటా విశేషంగా కృషి చేస్తున్నాం. ఈరోజు నేటి పవిత్రమైన యజ్ఞ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైన యోగ బంధువులందరికీ శుభాకాంక్షలు, స్వాగతం. మన రాజ్యంలో ఈ నేడు జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో అత్యంత కీలక
యోగ శిక్షకులు, జిల్లా బాధ్యులు ఉన్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా మేడ్చల్ నుంచి మన రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు, అదేవిధంగా ఈ ఆన్లైన్ యోగా శిక్షణ కార్యక్రమాలని అనుసంధానం చేస్తూ ఉన్న ఆదరణీయ కిషోర్జీ, మేడ్చల్లో అసిస్టెంట్ యోగా టీచర్ క్యాంప్ వారు, అదేవిధంగా రుద్రూరు నుంచి ఆదరణీయ విశ్వనాథ్జీ, నిజామాబాద్ జిల్లా సోషల్ మీడియాపై, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ నుండి ఆదరణీయ గుచ్చన్న గారు, భారత్ స్వాభిమాన్ నిజామాబాద్ జిల్లా అధికారి, అదేవిధంగా వినోద్జీ, డాక్టర్ వినోద్జీ, కుమరం భీం జిల్లా హైదరాబాద్ టు యువ భారత్ జిల్లా ప్రధాని, అదేవిధంగా కస్తూరి రాజన్న, యోగ ప్రచారక్, సిరిసిల్ల జిల్లా నుండి, అదేవిధంగా సాయిబాబా గారు, హైదరాబాద్. ఇలా ఈ ముఖ్యమైన కార్యకర్తలతో పాటు వాళ్ళ టీమ్స్ అందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొన్నారు. మన 5 సంఘటనల కార్యకర్తలు కూడా భాగస్వాములు అయ్యారు. మీ అందరికీ స్వాగతం. మహబూబ్ నగర్ నేటి ఈ మహబూబ్ నగర్ గౌరీ శంకర్ గారు ఆయన మల్లికార్జున గారు ఉన్నారు. మహబూబ్ నగర్ నుంచి ఈ అసిస్టెంట్ యోగా టీచర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న మల్లికార్జున గారు ఉన్నారు. తర్వాత మన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నుంచి, మహబూబ్ నగర్ ప్రాంతం నుంచి ఈ శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్న గౌరీ శంకర్ గారు, సిద్దిపేట జిల్లా నుండి ఈ శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్న వంశీ గారు, మీతో వచ్చిన మీ యోగ సాధకుల బృందానికి భారత్ స్వాభిమాన్ ట్రస్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం పక్షాన స్వాగతం. అదేవిధంగా నేడు మనం జరుపుకుంటున్న ఈ కార్యక్రమం కానీ, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే యోగ సాధనకి, యోగ ప్రచారానికి, పరమ పూజ్య స్వామీజీ ఆగమనానికి ప్రధాన కారకులు, మనందరికీ నిరంతర ప్రేరకులు, భారత్ స్వాభిమాన్ ట్రస్ట్ తెలంగాణ రాజ్య ప్రభారి, ఇండియన్ యోగా అసోసియేషన్ నేషనల్ వైస్ చైర్మన్ ఆదరణీయ శ్రీ శ్రీధర్ రావు గారికి మనందరి పక్షాన వారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. వారి యొక్క ఆదరణ, వారి యొక్క ప్రేరణతో తెలంగాణ రాజ్యంలో పతంజలి యోగ సమితి, భారత్ స్వాభిమాన్ ట్రస్ట్, మహిళా పతంజలి యోగ సమితి, యువ భారత్, పతంజలి కిసాన్ సేవా సమితిలతో పాటుగా మన అన్ని సంస్థల యొక్క కార్యకలాపాలు విశేషంగా ఇక్కడ కొనసాగుతున్నాయి. ఈరోజు వారు మనకి మొదటగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన కార్యకలాపాలకు సంబంధించి వారు ఇప్పుడు మనందరికీ మార్గదర్శనం చేస్తారు. ఆ పిదప మన యజ్ఞ కార్యక్రమం పూజ్య స్వామి యజ్ఞదేవిజీ నేతృత్వంలో కొనసాగుతుంది. మొదటగా మన తెలంగాణ రాజ్య ప్రభారి ఆదరణీయ శ్రీ శ్రీధర్ రావు గారిని ఈ సందర్భంగా మార్గదర్శనం చేయాల్సిందిగా స్వాగతిస్తున్నాను. శ్రీధర్ जी जी ओम उपस्थित सूक्ष्म उपस्थित परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी, अभी हमारा वर्चुअल ये यज्ञ में जुड़े हुए हरिद्वार से पूज्य यज्ञदेव जी, ऐसा ही उनकी साथी स्वामी प्रणव देव जी को मेरा प्रेम से, हृदय से अभिवंदन, प्रणाम। वैसा ही हमारा तेलंगाना प्रांत से निरंतर योग को
विकेंद्रीकरण करने के लिए निरंतर अवलंबन करते हुए कई सालों से बहुत लोगों को योग का प्रशिक्षण करते हुए उन लोगों को भी योगा टीचर बना के उनके द्वारा योगा केंद्रों को चलाने वाले हमारा सब भाई बहनों को मेरा प्रणाम। नमस्ते। ఈ విధంగా అయితే ఆదరణీయ మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంటర్నేషనల్ యోగా దినోత్సవాన్ని ప్రపంచం మొత్తంలో గత 6 సంవత్సరాల నుంచి జరుపుకోవడం జరుగుతుందో అది ఒక భాగం. ఆ విధంగా భారతదేశ యొక్క చరిత్రలో గొప్ప వ్యక్తులు గొప్ప కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. సో మనము మన భావితరాలకు వారి యొక్క గొప్ప కార్యక్రమాలు చరిత్ర గురించి నిరంతరం ఒక 5 నిమిషాలు మన కుటుంబంలో ఒక సత్సంగంలో చర్చించుకుంటే వారికి మన పూర్వ వైభవము పూర్వీకుల యొక్క చరిత్రను వాళ్ళకు అవగాహన చేపిస్తుంటే వారి యొక్క సంస్కృతి సంస్కారాన్ని మనము మళ్ళీ వారి యొక్క బీజం వేసిన వాళ్ళం అవుతాము. సో ఆ విధంగా మన యొక్క పరమ పూజ్య స్వామీజీ ఏ విధంగా అయితే ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి యోగా ఆయుర్వేదముతో పాటు నేచురోపతి దాంతో పాటు మన దినచర్య మన యొక్క ఆలోచన విధంగా ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా మన ఎన్విరాన్మెంట్ వాతావరణం గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఏదైతుందో అది చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి మనమందరము వసుదైవిక కుటుంబాన్ని కోరుకుంటున్నాము. ప్రపంచ ప్రాణులకు 84 లక్షల జీవరాశులతో పాటు మనుషులకు కూడా ఎట్లాంటి హాని కలిగించే కార్యక్రమం ఏది కూడా మనం చేయకుండా నిరంతరము వాటి మధ్యలో ఉండాలి. చేయకుండా మన యొక్క సంకల్పము మన యొక్క కాన్షియస్నెస్ లో ఉండాలి. మన అందరికీ తెలుసు ఒక 200 సంవత్సరాల పూర్వము అఖండ భారతదేశంలో ఉదయము సాయంత్రము ఈ యొక్క అగ్నిహోత్రం ప్రతి ఇంట్లో జరుపుకునేవారు, ప్రతి కుటుంబంలో జరుపుకునేవారు. ఈ యొక్క అగ్నిహోత్రం అనేది ఆధ్యాత్మిక మరియు ఆరోగ్యం సంబంధించింది. మరియు ఒక దినచర్యలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మంచి జీవన శైలికి ఒక కేంద్ర బిందువు. అప్పుడు మన యొక్క దినచర్యలో చేస్తున్న ఏదైతే కాలుష్యం ఉందో చాలా చాలా తక్కువ. ఇప్పటితో కంపేర్ చేస్తే లక్షలో ఒక పార్ట్. మరి ఇప్పుడు 1,00,000 రేట్లు అయిపోయింది. బట్ మనము ఈ యొక్క దినచర్యలో ఈ యొక్క నిత్య అగ్నిహోత్రం అనేది అప్పుడు చేసే దాంట్లో కోటిలో ఒకటి చేస్తున్నారు. కోటిలో ఒకటి బదులు ఒక 10 మంది, లక్షలో 10 మంది చేస్తున్నారు. కాబట్టి దీన్ని ఆ విధంగా కాకుండా యోగాను ఏ విధంగా అయితే మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామో, ఆయుర్వేదాన్ని ఏ విధంగా అయితే ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నామో, గోమాతను ఏ విధంగా అయితే ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నామో, ప్రకృతిని కాపాడుకుంటేనే మన యొక్క ఈ ఐడియాలజీని మనము భావితరాలకు ఇచ్చడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క హవన్ ఏదైతే నిత్య అగ్నిహోత్రం ఉంటుందో మన కుటుంబం నుంచి మన గ్రామంలో అందరు చేసుకునే విధంగా, గ్రామం నుంచి తాలూకా, తాలూకా నుంచి జిల్లా, జిల్లా నుంచి దేశం మొత్తం లోపల, దేశం మొత్తం నుంచి ప్రపంచం అంతా కూడా చేసే విధంగా ఏదైతే మన పరమ పూజ్య ప్రణవ్ దేవ్జీ మరియు యజ్ఞదేవ్జీ ఆరంభంలో చెప్పారో ఆ విధంగా ఈ కేంద్రీకరణం నుంచి ఇది మొత్తం కేంద్రం అయిపోవాలి. ప్రతి చోట ఈ యొక్క దినచర్యలో ఉన్నప్పుడే మనం ఎంతో గొప్ప కార్యక్రమాలు భారతదేశం చేయాలనుకుంటుందో ప్రపంచానికి అవి తరతరాలుగా ఉండటానికి అవకాశం ఉంది. ఏ విధంగా అయితే భూమి కాలుష్యమైందో, ఏ విధంగా అయితే నీరు కాలుష్యమైందో, అది కొంతవరకు కొన్ని ప్రాంతాలకే అక్కడ కాలుష్యం అయితే అక్కడ వాళ్ళు నష్టపోతారు. నీరు కాలుష్యం అయితే నీరు తాగిన వాళ్ళు నష్టపోతుంది. బట్ ప్రపంచంలో గాలి కాలుష్యం అయినప్పుడు ఇంకా ప్రపంచంలో జీవించడానికి గాలినే ఉంది. కాబట్టి మనకి ఎంతెంత గొప్ప ఆలోచనలు ఉన్నాయో అవంతా నిర్వీర్యమైపోతే వృధా అవుతుంది. కాబట్టి యోగాతో పాటు మనం అందరం ఈ యొక్క యజ్ఞాన్ని ఒక దినచర్యలో భాగంగా చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేది మన యొక్క అందరి సంకల్పం కావాలని
बहुत बहुत धन्यवाद और राज्य प्रभारी को सभी साधकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमें सदा स्वामी जी की रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सीताराम जी। अभी स्वामी जी जल्दी जाना बोल के हमारे को एक सूचना दिया। स्वामी जी को यज्ञ के बारे में प्रश्न का पूछने की जरूरत नहीं है, स्वामी जी यज्ञ के बारे में खुद बताएंगे। हाँ, तो अभी हम यज्ञ के लिए स्वामी जी के पास जाएंगे। మనమందరం పూజ్య స్వామీజీకి ఓంకారంతో స్వాగతం చెప్తూ ప్రారంభిద్దాం। ఈరోజు హవన కార్యక్రమం ఉంది। ఒక చిన్న సూచన, నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ బేస్ గా మళ్ళీ న్యూ ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసి ఈ జూమ్ పెట్టాను। సో మోస్ట్లీ మనకు కట్ కాదు, ఒకవేళ కట్ అయిపోయినా మళ్ళీ మీరు సేమ్ లింక్ లో జాయిన్ కావాలి। 100% కట్ కాదు, కట్ అయిపోయినా సేమ్ లింక్, మనకు ఆల్రెడీ రోజు యోగా క్లాస్ అలవాటు ఉంది, కట్ అయిపోయినా జాయిన్ అవుతాం। అలాగే అందరూ జాయిన్ అయిపోవాలి, ఏం చింత చేయొద్దు। 40 నిమిషాలు ఉన్నా మనం ఏం చింత చేయొద్దు, జాయిన్ అయిపోవాలి। 40 मिनट का अगर सेशन है तो भी अपन फिर सेम लिंक से ज्वाइन होना है। मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ और 100% कटने होंगे, अगर हुआ तो भी फिर सेम लिंक में ज्वाइन होंगे। सो अभी हम पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी के पास जाएंगे, पूज्य स्वामी जी को अनुरोध करेंगे आज की दैनिक अग्निहोत्र को संपन्न करने के लिए। पूज्य स्वामी जी महाराज। मैं पूछ लेता हूँ पहले पूज्य स्वामी जी की तरफ से, अभी क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ, हमारे पूज्य स्वामी जी हैं, तो कितनी देर तक चलेगा ये सब भी देखना है, क्लासेस भी होते हैं, ये सारे देखते हुए पहले सबसे पहले मैं आदरणीय श्री हमारे प्रेम है जिससे श्री श्रीधर राव जी आए, उनका भी बहुत स्वागत है। साथ साथ सभी लोग पूरे तेलंगाना टीम अलग अलग जिलों से जुड़े हैं, उनका फिर से स्वागत करता हूँ। और ये कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का नहीं है, उनको सीखकर इसका विस्तार भी मैं इसको याद रखना करूँ। तो मैं स्वामी जी भी यही चाहते हैं कि जैसे योग का विस्तार किए परम प्रसन्न आयुर्वेद का किए, ऐसे यज्ञ का भी हो रहा है और हम सब इसमें निमित्त बने, एक निवेदन है। और इस कार्यक्रम को हम शुरू कर देते हैं, तो स्वामी जी अब शुरू कर देंगे इस विषय में। मैं जाते हुए फिर से सभी को एक बार प्रणाम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी प्रणवदेव जी, प्रणाम। समय कितने बजे तक है अपने पास? 8:30 बजे तक है। आप 15 मिनट ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम समय ही 9 बजे तक रहता है। आप 8 to 9 तक ले सकते हैं। आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए परम पिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज के इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण सत्र की हम शुरुआत करते हैं। विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुरा यद्भद्रं पंचआसुरा। आप सभी योगी याजिक साधक भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आज विशेष रूप से संपूर्ण तेलंगाना राज्य से अलग अलग जिलों से अलग अलग तहसीलों से आप सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को विशेष रूप से आयोजित कर रहे हैं। और हम पहली बार तेलंगाना राज्य में इस यज्ञ का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और यह यज्ञ की आज से तेलंगाना में शुरुआत है और आने वाले समय में हम सब मिलकर के इस यज्ञ को एक जन अभियान की तरह घर घर तक इस यज्ञ को पहुंचाएंगे। ऐसा हम आज संकल्प
चेला करागारी तहसील प्रभारी राज्य प्रभारी सोशल मीडिया प्रभारियों से लेकर के सभी को मैं सादर नमस्ते प्रणाम करता हूँ। और आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी याद योगी साधक भाई बहन उनको प्रणाम करते हुए आइए आज हम ऋषियों की विद्या यज्ञ के बारे में कुछ जानेंगे, स्वयं यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे और पवित्र करेंगे, तो इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस यज्ञ से हमारा जीवन कैसे लाभान्वित हो सकता है। और यज्ञ एक केवल मात्र हमने कुछ सीमाओं को बांध करके रखा है। यज्ञ को हमने पूजा पाठ, एक कर्मकांड, एक पुजारियों का विषय, एक पंडितों का विषय, ब्राह्मणों का विषय बना करके नहीं, यह मनुष्य मात्र का विषय है, जीव मात्र का विषय। इससे जड़ और चेतन दोनों प्रभावित होते हैं। पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने की देवी विद्या और विद्या। इसलिए आइए हम सब मिलकर के इस यज्ञ की वैज्ञानिकता को जानें। उससे पहले तांबे का है या लोहे का भी चल सकता है या अन्य धातुओं का भी, लेकिन तांबे का जो पात्र होता है उसको उत्तम माना गया यज्ञ के लिए। यह हमारे पास छोटा सा ताम्र पात्र है, एक छोटा सा स्टैंड है, एक थाली हमने रख ली है और कुंड के अंदर ये हमने समिधाएं सजाई हुई है। इस प्रकार पहले छोटी छोटी टुकड़े। आप भी जो मेरे साथ यज्ञ कर रहे हैं सभी भाई बहन अपने हवन कुंड के नीचे आपके पास समिधाएं, समिधा अर्थात लकड़ी या जो भी ईंधन के रूप में आपने आधार लिया है, पहले छोटे छोटे टुकड़ा करके उसको नीचे डाल दीजिए। उसके बाद दो लकड़ियों को ऐसे खड़ा रखिए, हवन कुंड के हिसाब से इसको काट लीजिए और उसको फिर रख दीजिए। उसके बीच में थोड़ी सी रुई लीजिए, रुई आती, थोड़ी सी रुई लेकर के उसके बीच में आप रख दीजिए, बीच में। और दो समिधाएं और लीजिए, उसके ऊपर आड़ी रखें। पहले हमने खड़ी रखी, अब आड़ी रखेंगे उसके ऊपर साइड में, बीच में खाली रखेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आप कर दीजिए। इस प्रकार से आप इस समिधाओं को सजा दीजिए। दो आड़ी और दो खड़ी समिधाएं और छोटे छोटे टुकड़े बीच में नीचे डाल दिया और उसके ऊपर रुई रख दी। उसके बाद गाय का घी, यह मेरे पास कमंडल में रखा हुआ गाय का घी गर्म होना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं, एक गर्म पिघला हुआ घी होना चाहिए, जमा हुआ नहीं, ऐसे गर्म किया हुआ पिघला हुआ घी। एक हो जाता है ठंडी का, अभी ऋतु है, ठंडी में जम जाता है। जमा हुआ घी का यज्ञ के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा उसको गर्म करना पड़ेगा। और एक कोई छोटा सा रूमाल आदि आप अपने पास रख सकते हैं और बीच में हम आचमन अंग स्पर्श आदि करेंगे, जल सिंचन करेंगे या हाथ आदि पोंछने के लिए काम आएगा। छोटा सा कोई भी टुकड़ा रूमाल का आप अपने पास रख लीजिए। और यह जो गाय का घृत है, पिघला हुआ घृत, गर्म घृत को थोड़ा सा जो हमने बीच में रुई रखी है, उस रुई को भिगा दीजिए और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी के रखे हैं उसको भी भिगा दीजिए। और जो उसके ऊपर हमने बड़ी समिधाएं रखी हैं, 4 समिधाएं, 2 खड़ी और 2 आड़ी, उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में ऐसे घी डाल दीजिए। जिसे आप पहली बार कर रहे हैं तो धुआं बिल्कुल नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप यज्ञ कर पाएंगे। इस प्रकार से घी भी थोड़ा थोड़ा सिंचित कर दीजिए। और वो जो समिधाएं हमने लगाई है उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी, जिससे हम अच्छे से यज्ञ कर पाए। अग्नि के आधान के बाद अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए हमें अन्य प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप कर देंगे तो। और एक संविधा और लीजिए और उस संविधा को भी घृत से युक्त करके साइड में रख लीजिए। इसको जब हम अग्नाधान करेंगे, अग्नि को वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे, उसके बाद
ये बीच वाली संविधा के ऊपर उसको रखेंगे, जिससे ये तुरंत आग पकड़ लेगा और बहुत ही अच्छे से अग्निधान हमारा संपन्न हो जाएगा। और लगा करके साइड में रखेंगे। उससे अतिरिक्त जो हम संविधा धान करेंगे उसके लिए 3 संविधाएं कर लेंगे। एक छोटा सा दीपक लेकर के, आपके पास दीपक होगा, दिया, दीपक के अंदर एक बाती लेकर के, ये बाती हमने रूई से बाती तैयार कर ली है, ये बाती को दीपक में लगा लीजिए और उसके अंदर भी घी रख लीजिए, थोड़ा सा बाती को भी भिगा दीजिए और घी थोड़ा सा 2 चम्मच उसमें डाल दीजिए। ये दीपक हमारा तैयार हो गया। यह आचमन पात्र है, छोटा सा एक कोई कटोरी, उसके अंदर पानी और एक छोटी सी कोई चम्मच उसमें रख ली, और एक एक्स्ट्रा पात्र हम हस्त प्रक्षालन आदि करके उसमें जल डालेंगे। एक माचिस और कपूर की एक टिकिया को लेकर के, 1 या 2 टिकिया लेकर के उसको दबाइए तो पाउडर हो जाएगा। पाउडर हो जाने के बाद, चूर्ण हो जाने के बाद, उसको जो हमने रुई रखी है वेदी के मध्य में उसके ऊपर डाल दीजिए इसे, थोड़ा सा एक टिकिया को, और एक दूसरी टिकिया लीजिए और उसको आप, जो श्रू है हमारे पास घृत का चम्मच है, इसको श्रू बोलते हैं, घृत का चम्मच बोलते हैं, जिससे हम आहुति प्रदान करते हैं। ये थोड़ा सी लंबी डंडी वाला होता है और अग्नि ताप ना लगे, इस प्रकार का ये श्रू बोलते हैं इसको, चम्मच। इसके अंदर ऐसे खड़ा कपूर की टिकिया रख करके और उसको रख दीजिए। ये हमारे पास घृत का पात्र है, जल घृत रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऐसे कोई भी एक पात्र में आप रख सकते हैं। और एक छोटा सा कलश कोई भी हो, या तांबे का हर घर में होता है, उसके अंदर पानी रख लिया, जल सिंचन के लिए। और ये 8 अंगुल की, ऐसे इसको कहते हैं 8 अंगुल, 4 अंगुल और 4 अंगुल, 8 अंगुल ऐसे संविधा, ऐसे 8 अंगुल की 3 संविधाएं हम तैयार करके रख लेते हैं। अज्ञाधान के बाद संविधा धान के लिए ये 3 संविधाएं हम रख लेंगे। और यज्ञ के लिए हवन सामग्री, ये मेरे पास तैयार की गई हुई हवन सामग्री है। इसमें चावल है, तिल है, जौ है, उड़द है, मखाने है, बादाम है, गिलोय है, तुलसी है, चंदन है, आदि आदि जो उत्तम औषधीय तत्व होते हैं, उन सबको 4 प्रकार के गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं वो इसमें हमने सम्मिश्रित कर रखे हैं। वो कभी भी हम अपने घर में भी हम सामग्री बना सकते हैं। उसके लिए 4 प्रकार के द्रव्य चाहिए, सुगंधित, पुष्टिकारक, रोग निवारक और मिष्ट। इस प्रकार के 4 गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं उसका सम्मिश्रण करके चूर्ण बना देते हैं। इसको कहते हैं हवन सामग्री हमारी तैयार हो गई आहुति के लिए। और ये अपने पास नहीं है तो आप सबके घर में चावल जरूर होंगे। ये मेरे पास अक्षत चावल रखे हुए हैं, जो टूटे हुए ना हो, ऐसे चावल जो पूरे चावल हो, पूरे दाने हो, ये आप देख सकते हैं। ये चावल आपके घर में है, खाली आप चावल लीजिए, त्रिदोष सामक होते हैं चावल आयुर्वेद की दृष्टि में। और केवल हम चावल की आहुति देकर के गाय के घी के साथ भी हवन कर सकते हैं। ये चावल भी आप रख सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप चावल से यज्ञ कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये काले तिल, आपके पास और भी कोई द्रव्य नहीं, काले तिल भी पूरे भारत में सब जगह प्रयोग में, तो आप केवल काले तिल को लेकर के भी आहुति प्रदान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इस काले तिल को अपनी जो हवन सामग्री है उसके साथ भी आप मिला सकते हैं, काले तिल। और इससे अतिरिक्त हम अपने घर के अंदर जो और भी औषधियां पाई जाती हैं, तो औषधियों के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा कि हम अपने घर में किस प्रकार से यज्ञ कर सकते हैं हवन सामग्री बनाकर। ये मैंने कुछ द्रव्य आपको दिखाने के लिए मेरे सामने रखे हुए हैं। यह विपुल है, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये जो विपुल की सुरभि है, सुगंधी है, वो बहुत ज्यादा लाभ। ये तेज पत्ता है, तमाल पत्र जिसको बोलते हैं, इसको भी हम हवन सामग्री में डाल करके विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ये चावल हो गया। ये काली मिर्च हमारे घर में ही रहती है, ये काली मिर्च को भी आप थोड़ी सी मात्रा में हवन सामग्री के अंदर मिला सकते हैं। यह लोबान है, ये विशेष रूप से सुगंधित एक द्रव्य विशेष होता है। यह श्वेत चंदन है, ये तो बहुत ही सुगंधित द्रव्य होते हैं। आप इसे थाली में रखा हुआ है, श्वेत चंदन दूर है, फिर भी बहुत सुगंधित होता है। इसको भी हम हवन सामग्री में जब बनाते हैं तो उसके चूर्ण के साथ इसका भी चूर्ण हम मिश्रित करते हैं तो बहुत ही अच्छी सुगंधित हवन सामग्री तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से यह इलायची भी सब जगह पे सभी घरों में पाई जाती है। छोटी इलायची जिसको कहते हैं, बड़ी इलायची भी प्रयोग कर सकते हैं, छोटी इलायची भी। और ये जो छोटी इलायची वो सुगंधित सोमरसकारी होती है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है। और इसी प्रकार से अमृता जिसको कहा जाता है, अमृतम जिसको कहा जाता है, गिलोय
गुरु जी जिसको कहा जाता है यह गिलोय आज बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसका सेवन कर रहे हैं और ये गिलोय सर्वोत्तम औषधि के रूप में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इस गिलोय का भी चूर्ण हम इसमें साथ में मिक्स करते हैं और ये अपामार है, चिड़चिड़ा जिसको बोलते हैं, अपामार चिड़चिड़ा, यह जो वंशानुगत रोग होते हैं उनको भी इसका हवन करने से वंशानुगत जो रोग होते हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी ताकत ऐसी शक्ति होती है अपामार चिड़चिड़ा जिसको बोलते हैं। ये अपामार चिड़चिड़ा को भी आप हवन सामग्री में साथ में मिक्स कर सकते हैं। इसी प्रकार से यह अश्वगंधा हमारे पास रखा हुआ है। अश्वगंधा विशेष करके पुष्टि के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए और वातावरण को भी इसी प्रकार से पुष्टिकारक गुणों से युक्त करने के लिए अश्वगंधा की जो जड़ होती है उन जड़ों को हमने इसमें मिलाया है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं जो पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक और मिष्ट मीठे गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके हम हवन सामग्री तैयार करते हैं। वह हवन सामग्री आज हमारे पास हमारे सामने है। अब हम सब लोग मिल करके हवन करेंगे। आप सब लोग तैयार होंगे। आइए अब हम सीधा बैठ करके परमपिता परमात्मा का निज नाम हमें दैनिक अग्निहोत्र कैसे करना है वो आपको बताते हुए अब हम यज्ञ में प्रवृत्त होंगे। आप सब लोगों ने घी गरम करके तैयार कर लिया होगा, दीपक तैयार कर लिया होगा, संविधा लगा ली होगी। जो मैंने कहा छोटी छोटी 8 अंगुल की 4 संविधाएं, 3 संविधाएं हो और एक धाम के बाद हमने रखने के लिए तैयार कर ली होगी। माचिस आपने अपने पास रख ली होगी, कपूर, माचिस, बाती, ये सारी चीजें हमने तैयार कर ली होगी। हाथ पोंछने के लिए इट्स साइड आपने वेट पास रख लिया होगा। अब हम इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के लिए पहले सीधा बैठते हैं, सीधे बैठ करके अదే ఎంటర్ కొడుతుంది క్లియర్ గా వస్తుంది उद्घोष करते हैं। షేర్ మీద పెడతావా इस प्रकार से 3 बार पावनकार का उद्घोष इसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण करने के बाद पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाएं हम संपन्न करेंगे। हमारे पास जो कटोरी में जल रखा हुआ है, चम्मच से अपने दाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में सभी लोग जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद हम आचमन करेंगे। इस जल को అందరూ వస్తారు मंत्रोच्चारण के बाद 3 बार हम के साथ दाएं हाथ की अंजलि में राइट కింద పెట్టేశారు जल ले लेंगे अब हथेली को नाली नुमा बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगा करके इस प्रकार से जल का पान करें। दूसरी बार जल लेंगे और दूसरा मंत्र का उच्चारण करते हुए इसी प्रकार से हम दूसरी बार आचमन करेंगे। ఇట్ సైడ్ పెడతాం अमृता पिधानमते स्वाहा। ఓకే इसी प्रकार तीसरी बार जल लेंगे और तीसरा मंत्र का उच्चारण करते हुए हम तीसरी बार आचमन करेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रयताम स्वाहा। ऐसे 3 बार आचमन करने के बाद अब हाथ को धो लेंगे। इस हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और जो आपके पास दूसरी छोटी सी प्लेट कोई है तो उसके अंदर उस जल को डाल दिया, अर्थात हस्त प्रक्षालन कर दिया पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए। और हस्त प्रक्षालन करने के बाद अब बाएं हाथ में, लेफ्ट हाथ में जल लेंगे, पानी लेंगे, वाटर लेंगे। लेफ्ट हाथ के अंदर जल लेंगे और दाएं हाथ की, राइट हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता के लिए, उस अंग की शुद्धि के लिए, उस अंग की एकाग्रता के लिए, उस अंग की शक्ति के लिए प्रभु से कामना करते हुए हे प्रभु जब तक हम जिए तब तक यह इंद्रिया हमारा साथ दे, हमें सुख दे, हमें शांति दे, हमें और जिन विषयों को हम हमारी यह इंद्रिया ग्रहण करें वो हमारे लिए भद्र और कल्याणकारी हो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे। एक एक मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रता और शक्ति की कामना करते हुए ओम वामा आद्यतु मुख पे स्पर्श करेंगे। ओम
अक्षर में चक्षुरस्तु, दोनों आंखों पर, नेत्रों पर। ओम कर्णयोर में श्रोत्रवस्तु, दोनों कानों पर। ओम बाहुर में बलवस्तु, दोनों हाथों की भुजाओं पर, बाहों पर। ओम ओजोस्तु, दोनों पैरों पर, हाँ, सर। भुजाओं पर। ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतो। अब जो जल है उसको शरीर के सभी अंगों के ऊपर इस प्रकार से छिड़क दीजिए, सभी अंगों के ऊपर। और फिर कोई रुमाल आदि आपके पास है, उससे हाथ को पोंछ लीजिए। हाथों को पोंछ करके अब इस कटोरी को आप साइड में रख दीजिए। आचमन अंग स्पर्श की क्रियाएं हमारी संपन्न हो चुकी हैं, अब उसका कार्य संपन्न हो गया। अब आप माचिस को पास में रख लीजिए और शुरू के अंदर जो चम्मच है, जो घी की हम आहुति प्रदान करते हैं, उस चम्मच के अंदर कपूर की एक टिकिया को इस प्रकार से खड़ा रख लीजिए, जिससे वो अपनी प्रदीप्त करने के लिए विशेष रूप से हम आराम से उसको प्रदीप्त कर पाए। और अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए, दीप प्रज्वलन करते हुए सीधा यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि हमारे पास समय है, अनुकूलता है, तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के वेद के 8 मंत्र होते हैं, उन 8 मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो आइए आज आप सभी लोग पहली बार कर रहे हैं, हम परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए इस यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। अन्यथा आप इतनी शुद्धता की क्रियाओं को करने के बाद सीधा आप यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन आज हम 8 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ करके सीधे बैठे हुए इन मंत्रों का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते, प्रसिद्धं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो नितिशतो वैकैराज जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन रुद्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्का आस्ते जुवस्तन्नो अस्तु वयं च पतयोरहीणाम्। ओम तानो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्तिदीये धामन्नध्येरयन्तः। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणवेनो भुविष्ठान् तेन व उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना।
इस प्रकार से हाथ जोड़ते हुए अर्थ भावना पूर्वक 8 मंत्रों का उच्चारण करते, इसको ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना मंत्र बोला जाता है। इसको हम उच्चारण करते हैं यदि समय है, अन्यथा इसके बिना भी एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके और फिर 3 महाव्याहृति। अब आप माचिस अपने हाथ में ले लीजिए, लेकर के अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। आपके पास दीप रखा ही है। ओम भूर्भुवः स्वाहा, दीप प्रज्वलित करें। 3 महाव्याहृतियों के साथ दीप को प्रज्वलित कर देंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपके पास शुरू के अंदर कपूर की टिकिया रखी है, उसको आप इस दीप से प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में रखेंगे। अगले मंत्र के माध्यम से ओम भूर्भुवः स्वर्गोरिवभूना पृथिवीववरिण्यः तस्या आस्ते पृथिवी देवयजने यज्ञ कुंड के बीच में जो हमने रुई रखी थी गाय के घी से युक्त करके और कपूर डाला था उसके ऊपर इस टिकिया को रख दीजिए। अब एक संविधा जो हमने गीली करके रखी थी पहले से ही, उस गीली हुई संविधा को अब इसके बीच में आप रख दीजिए, जिससे वो तुरंत अग्नि प्रदीप्त कर लेगा। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूते तगं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च सीदत। इस प्रकार इस मंत्र के उच्चारण के दौरान छोटी छोटी संविधा लगानी पड़े, कपूर और लगाने की आवश्यकता पड़े, गाय के घी की 4-5 आवृत्तियां या जो भी थोड़ी बहुत घी की आवश्यकता पड़े, तो उसको हम इस मंत्र के उच्चारण के दौरान और इसके बाद हम इस क्रिया को संपन्न करें, जिससे जिस अग्नि का हमने आधान किया वो अग्नि विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाए। यह क्रियाएं हमें संपन्न करनी होती है। और दीपक हमने प्रदीप्त किया। अब इसको ईशान कोण की ओर, पूर्व दिशा में ईशान कोण की ओर दीपक को हम रख देते हैं, वेदी के ईशान कोण के ऊपर जहाँ पे हमने कलश रखा है। और यजमान पूर्वाभिमुख होकर के सूर्य की ओर मुख करके बैठता है और अन्य सारे लोग दूसरी दिशाओं में बैठते हैं। जिस ओर से हम घी की आहुति देते हैं उस व्यक्ति को पूर्वाभिमुख होकर के बैठना होता है। अब हमने संविधा धारण कर दिया, अब अग्न्याधान कर दिया, अब संविधा धारण करना है। जो आपको मैंने कहा था 3 संविधाएं, अब ये तीनों संविधाओं को आप इस प्रकार से गाय के घी से सिंचित कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा गाय का घी लगाइए इस प्रकार से, और मंत्रोच्चारण के बाद हम 3 संविधाओं का आदान करेंगे, एक एक मंत्र के बाद एक। ऐसे थोड़ा सा 4 दिशाओं में गाय के घी से युक्त कर दी संविधा को, फिर दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में संविधा को वेदी के सामने पकड़ते हुए मंत्रोच्चारण करके अंतिम में जब हम स्वाहा बोलेंगे तब इस संविधाओं का हम आधार करेंगे। ओम अयंत येत्वा आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्वर्धस्वचेद्धर्णय चास्मान् प्रजया पशुभेन्द्रं भवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब दूसरी संविधा लेंगे, उसको भी दीप से चिंतित करके इसी प्रकार से दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में पकड़ते हुए प्रार्थना करते हुए प्रभु से हम आदान करेंगे। ओम समिधात्मेन्दुवस्य बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय सोतिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी संविधा ले लेंगे और उसको भी गाय के घी से सिंचित कर लेंगे और तीसरे मंत्र के माध्यम से हम इस संविधा का आदान करेंगे। ओम तन्त्वा समिध्यं विरोधेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये उल्येनसे इदन्न मम। ये संविधा दान के बाद अब पंचघृत आहुति प्रदान करें। केवल आप गाय के घृत की आहुति प्रदान करेंगे। अगले एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 घृत की आहुति। इस अग्नि का जो हमने आधान किया उसको बढ़ाने के लिए हमने संविधा आधान किया, अब उसको और बढ़ाने के लिए हम पंचघृत आहुति प्रदान करें। ओम अयंत एत्वा आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्वर्धस्वचेद्धर्णय चास्मान् प्रजया पशुभेन्द्रं भवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये
अयंत एव आत्मा जातवेदस्ते यस्वर्णस्वचे प्रवर्णयशास्मान् प्रजया पशुभिर्न भवत्यसे नान्नाद्ये समेदयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नब्धा ओम अयंत एव आत्मा जातवेदस्ते यस्वर्णस्वचे प्रवर्णयशास्मान् प्रजया पशुभिर्न भवत्यसे नान्नाद्ये समेदयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नब्धा ओम अयंत एव आत्मा जातवेदस्ते यस्वर्णस्वचे प्रवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिर्न भवत्यसे नान्नाद्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नभव ओम अयंत एव आत्मा जातवेदस्ते यस्वर्णस्वचे प्रवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिर्न भवत्यसे नान्नाद्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। इस प्रकार से पंच क्रियाओं को प्रदान करते हैं। और आप पहली बार कर रहे हैं, नए कर रहे हैं, कई बार अच्छे से अध्यात्म नहीं हुआ, अच्छे से हम संविधाओं का अध्ययन नहीं कर पाए, या फिर संविधाएं ईंधन के रूप में ली गई लकड़ी गीली है, सीमेंट वाली है, तो अग्नि को प्रवित करने में थोड़ी देर लगता है। तो आप एक या दो आहुति और इसी मंत्र से उच्चारण करते हुए दे सकते हैं। ओम अयंत एव आत्मा जातवेदस्ते यस्वर्णस्वचे प्रवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिर्न भवत्यसे नान्नाद्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। आप देख सकते हैं यह 5 घृत की आहुति देने पर्यंत में यह अग्नि हमारे सिर, छोटा सा हवन कुंड एक भूमि पर रखा हुआ है, फिर भी हमारे सिर पर्यंत ऊंची आ रही है। ये आदर्श रूप में अग्नि अब प्रविष्ट हो चुकी है। इसके बाद अब हमें जल सिंचन करना है। ये के चारों दिशाओं में चारों कोण है। अगर आपके पास एक कलश रखा हुआ है, इस कलश को आप अपने हाथ में ले लीजिए और दाएं हाथ की अंगुली में राइट हैंड दाएं हाथ की अंगुली में जल लेकर के सबसे पहले पूर्व दिशा में मंत्र उच्चारण के बाद हम जल सिंचन करेंगे। ओम आदित्य अब पश्चिम दिशा उत्तर दिशा में ऐसे तीनों दिशाओं में जल सिंचन किया। अब अगले मंत्र के माध्यम से ईशान को पूर्व दिशा से शुरुआत करके चारों दिशाओं में एक ही मंत्र के बाद जल सिंचन करेंगे। ओम पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा में जल सिंचन करते हुए और फिर कलश को हम ईशान कोण से पूर्व दिशा में रख देंगे, जहाँ हम दीपक रखेंगे और जल फिर अपने हाथों से पोंछेंगे। यह हो गई जल सिंचन की क्रिया संपन्न। यह अभी तक की जो क्रियाएं हमको अग्नि को प्रविष्ट करने के लिए, अग्नि रूपी देवा का मुखता, अग्नि सभी देवताओं का मुख है, उसको हमने अग्नि तक आह्वान करते हुए अपने देवताओं का आह्वान करते हुए अब हम मुख्य यज्ञ की ओर, ये देव यज्ञ दैनिक अग्नि को कहा जाता है, इसलिए और हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास दो गाय का दूध और तैयार की हुई सामग्री जो पूर्व अब आगे शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले 4 आधार राज्य भाव केवल मात्र घी की आहुति। सबसे पहली आहुति देवी के मध्य में प्रविष्ट स्थल भाव में जो उत्तर दिशा में प्रविष्ट होगा उसके ऊपर धारा बनाते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर
सभी लोग सामग्री की आहुति देंगे और एक व्यक्ति गाय के दूध की आहुति प्रदान करेंगे। हर मंत्र के अंत में स्वाहा के साथ। सबसे पहले हम प्रातःकालीन 4 मंत्रों की आहुति देंगे, फिर सायंकालीन 4 मंत्रों को, फिर उदयकालीन मंत्रों से, और उसके बाद आगे विशेष मंत्रों से। ओम सूर्यो सायंकालीन में कोई कुछ सायंकालीन 4 मंत्रों की आहुति प्रदान की। अब हम उदयकालीन मंत्र की आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदं वायवे प्राणाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्राणापानध्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निहाय प्राणापानध्यानेभ्यः इदं नमः। विशेष मंत्र मेधा की कामना के लिए। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्य मेधया मे मेधां स्वाहा। इसी प्रकार सब गुणों को प्राप्त करने के लिए ओम विश्वानि देव यद्भद्रं तन्नस्तु स्वाहा। अब सुपथ के लिए अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् तुयो यस्मज्जुहुरागमेनो भूयिष्ठान् ते नमः पुष्टिं विधेम स्वाहा। 5 से 7 मिनट का समय है। 5 से 7 मिनट हमारे यहाँ डेली कीजिए और अधिक हमें करने की इच्छा है तो हम गायत्री मंत्र श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा गया मृत्युंजय मंत्र जिसको कहा गया उससे हम विशेष आहुति प्रदान करें। तो आइए आज इस पावन अवसर पर हम सब लोग मिलकर के एक साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हम 7 आहुति प्रदान करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् 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 भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आज हमने 7 आहुति विशेष रूप से प्रदान की, लेकिन जो हमने पूर्व में आहुति दी उसको भी उससे भी हम हवन कर सकते हैं। जो नहीं आता है तो इसी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए भी आप 7 आहुति देंगे। 7 आहुति देने में कितनी मिनट लगते हैं? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति केवल गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए दे सकते हैं इस देवी का पूजन। इसी प्रकार से आपको मृत्युंजय मंत्र ज्यादा अनुकूल होता है। मृत्युंजय मंत्र की भी हम आहुति दें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् इस प्रकार से आप मृत्युंजय मंत्र से भी आहुति दे सकते हैं, गायत्री मंत्र से दे सकते हैं, और जो पूरा विधि पूर्वक आता है जैसे हमने कुछ विशेष मंत्र का उच्चारण किया वैसे, लेकिन 5-7 मिनट लगती है 21 आहुति देने में, बहुत ज्यादा 7 इतनी देर हमें प्रतिदिन अवश्य देते हैं। इतना हो जाने के बाद यह यज्ञ हमारा संपन्न हो। अब अंतिम में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यह पूरा होती है। इसके बाद सीधे बैठते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम तेजोसि तेजोमयि देहि, ओम वीर्यवति वीर्यमयि देहि, ओम बलवति बलमयि देहि, ओम ओजोसि ओजोमयि देहि, ओम मन्यसि मन्यमयि देहि, ओम सहोसि सहोमयि देहि। व्यक्तिगत जीवन की कामना के लिए बल, ओज, तेज, पराक्रम, शक्ति की कामना करते हुए, इसके बाद संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भगानि भवेत्। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो
प्राणधारी हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरुपम, धन धान्य के भंडारी। इस प्रकार से प्रार्थना, याचना, मंगल कामना, ये सारी चीजें अपनी इच्छा के अनुसार हम जोड़ सकते। अन्य दैनिक अपनी हमें प्रतिदिन 16 आहुति उतरे अवश्य होता, मान 5 से 7 लीटर मुख्य आहुतियां उसको हमें अवश्य ही प्रदान करना होता है और करना ही करना चाहिए। इससे अतिरिक्त हम और कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो और विशिष्ट गायत्री मंत्र या अन्य मंत्रों से आहुतियां दे सकते हैं। वैदिक मंत्रों से दैनिक अग्निहोत्र के मंत्र आदि हमें नहीं आते तो केवल आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, ये सब समय, शक्ति, सामर्थ्य, अपेक्षा, आवश्यकता उसके आधार पर। और इसके साथ साथ हम यज्ञ के बाद मनोकामना की प्रार्थना, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना, वो भी अपनी स्वेच्छा से आप भजन आदि स्वाध्याय आदि आप जोड़ सकते हैं। अन्यथा इतना तो अवश्य करना चाहिए। 7 मिनट का यज्ञ मुख्य आहुति हमें अवश्य प्रदान करना है। और सबसे अंतिम जैसे यज्ञ संपन्न हो गया उसके बाद में सीधे बैठते हुए 3 बार आध्यात्मिक आदिदेव और आदिदेव तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से हमें शांति मिले, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए हम शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से शांति 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 3 बार उच्चारण करके हम इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। यह हो गया दैनिक यज्ञ, दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र। उसका 2 विकल्प मैंने बताया, गायत्री मंत्र से भी हम कर सकते हो जो आज हमने जिस प्रकार से किया। और इसमें हम आज तो हमने एक्स्ट्रा भी कई मंत्रों के हमने विशेष आहुति प्रदान की। आप 16 आहुति जिसको कहा गया उसको तो अवश्य प्रदान। और इतना हम यज्ञ नहीं करते तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यज्ञ शिष्टासि न संतो मुच्यते सर्वकिल्बि से भुज्यते तुम पापा एक क्या। जो व्यक्ति बिना यजन का भोजन करता है वो पाप का भागी होता है, वो अन्न नहीं पाप को खा रहा है। यज्ञ शिष्टामृत जानती नहीं। और यजन करने के बाद जो अन्न को ग्रहण करता है सभी प्रकार से पापों से छूट जाता है, सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम अलोको यज्ञ सकुतो जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, पर लोक की तो बात ही छोड़। ऐसे भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य जी ने भी अपने नीति शास्त्र में कहा जिस घर में यजन नहीं होता है, हवन नहीं होता है, वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती, संत महात्माओं का आगमन नहीं होता है, वह घर स्मशान के तुल्य, स्मशान तुल्यानि गृहाणि, वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं जहां हवन नहीं होता। हम अपने घर को स्मशान देवालय में वेदों ने कहा जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, वह घर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वहां पे देवीय शक्तियों का वास होता है, देवालय बन जाता है। वहां पे पॉजिटिव एनर्जी, वहां पर सारी देवीय शक्तियां वास करने लगती हैं। वहां कोई भी उसके घर में, उसके परिवार में क्लेश, ताप, संताप, किसी प्रकार का कोई दुख स्थिति उसके घर में नहीं है। और सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः, और जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है, जो चाहता है वो उनको प्राप्त होती है। इसलिए वेदों में, शास्त्रों में सब जगह पे देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्ता श्रेयः भावयत देवा भावयतान। जो हमारे पास आए हैं उससे हम देवी शक्तियों को दें और जो देवी शक्तियों के मिला उसको हम इस प्रकार परस्परम भावयन्ता श्रेयः, इस परस्परता में करते हुए परम श्रेय को हम प्राप्त। यह शक्ति यह ताकत इस यज्ञ में है, हवन में है, अग्निहोत्र में है, शास्त्र विधान भी है, हमारे जीवन का कल्याण भी है और इस प्रकृति का संरक्षण भी इसी यज्ञ के अंदर समा है। देखिए हम जिस जीवन को जी रहे हैं इस जीवन के लिए, इस पर्यावरण के लिए जिससे पर्यावरण बना हुआ
पर्यावरण में और इस ब्रह्म पिंड में और इस ब्रह्मांड, ये दोनों की यदि हम संरचना देखें तो पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों से ही ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा तन बना हुआ है, हमारा शरीर बना हुआ है। और यह 5 तत्वों का शोधन, इन 5 तत्वों का पोषण, इन 5 तत्वों का संतुलन करने की कोई सबसे श्रेष्ठ और दैवीय विधा और विद्या है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इस यज्ञ को करने से, हवन को करने से, अग्निहोत्र को करने से यह 5 तत्व संतुलित होते हैं, यह 5 तत्व संरक्षित होते हैं, यह 5 तत्व पोषित होते हैं। और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा पर्यावरण बना हुआ है और इन 5 तत्वों से हमारा यह तन बना हुआ है। तन और पर्यावरण दोनों को संतुलित करने की सबसे श्रेष्ठ विद्या यह यज्ञ है। इसलिए हम सभी लोग इस यज्ञ को, हवन को, कई लोग इसको संप्रदायवाद में बांटते हैं, जातिवाद में बांटते हैं, समुदाय में बांटते हैं। ये ब्राह्मणों का विषय है, ये पुजारियों को, पंडितों का विषय है। यह एक कर्मकांड मात्र, पूजा पाठ मात्र नहीं, यह पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक पिंड को संतुलित करने की सबसे श्रेष्ठ विद्या है। और इन्हीं 5 तत्वों में हमारा जीवन, ये शरीर बना हुआ, इन 5 तत्वों के बीच में हम पैदा होते हैं, 5 तत्वों में हम समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए हमारा जीवन चलता है। और इन्हीं 5 तत्वों को सुरक्षित, संरक्षित और पोषित करने की सबसे श्रेष्ठ विद्या और विद्या यह यज्ञ है। इसलिए जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए जो इस धरती पर रहता है, जो इन धरती पर रहने वाले इन 5 तत्वों का प्रयोग करता है, हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है यह यज्ञ। क्यों? क्योंकि सभी लोग, मनुष्य मात्र इन 5 तत्वों का प्रयोग ले रहा है। हम सभी एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही वायु में सांस लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं। हम सभी लोग समान रूप से इन 5 तत्वों का प्रयोग ले रहे हैं। इन 5 तत्वों का प्रयोग लेकर के जो अशुद्ध करके तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसको शुद्ध करने की जिम्मेदारी हमारी। इस यज्ञ के माध्यम से शुद्ध होते हैं, पोषित होते हैं, संरक्षित होते हैं। इसलिए हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इसलिए 5 तत्व संरक्षित। इसलिए मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि हम यज्ञ करें, हवन करें और इन 5 तत्वों को संरक्षित और सुरक्षित करें। इसको संप्रदायवादों में ना, यह हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं, ऐसा नहीं। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी मत, पंथ, जाति, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति, चाहे वो वृद्ध हो, बालक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो गरीब हो, धनवान हो या मध्यम वर्ग का हो, चाहे तो भारत में या कोई भी देश में रहने वाला, हर कोई मनुष्य मात्र इन 5 तत्वों का समान रूप से प्रयोग लेता है। और जो इस 5 तत्वों का प्रयोग लेता है, उन 5 तत्वों को शुद्ध, संरक्षित और सही करने के लिए यही यज्ञ ही हमारे पास एक साधन है। इसलिए आइए हम सब इस यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं और जिन 5 तत्वों से यह हमारा पर्यावरण और हमारा पिंड, शरीर बना है, उसको संरक्षित करें, संतुलित करें, पोषित करें। यह एक बहुत बड़ा बिंदु, एक बहुत बड़ी बात। दूसरा, यह यज्ञ केवल मात्र एक पूजा पाठ कर्मकांड नहीं, अपितु यह एक ऐसी दैवीय विधा है, विद्या है। इस यज्ञ को करने से, इसी कुछ साइंटिफिक रूप से भी यदि कुछ आपके सामने बात रखना चाहते हैं, इस यज्ञ को जो करते हैं, इस यज्ञ में जिन औषधीय द्रव्यों को और गाय के घृत और आहुति या हवीर आदि औषधियों को आहुति प्रदान करते हैं, तो यह द्रव्य नष्ट नहीं होता है। सामान्य रूप से व्यक्ति अग्नि में डालना अर्थात नष्ट करना समझता है, अर्थात उसको खत्म कर दे। वास्तव में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, अपितु रूपांतरित होती है। जैसे मैंने गाय का घृत और जड़ी बूटियां डाली, तो अब अग्नि में डालने के बाद अब ये रूपांतरित होता है। पहले ठोस रूप में और द्रव रूप में। द्रव रूप में मेरे पास घृत था, एक घृत है मेरे पास द्रव रूप में, और ठोस रूप में हमारे पास गूगल रखा हुआ, मैं देख पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ। लेकिन अब मैंने अग्नि में डाल दिया। अग्नि में डालने के बाद थोड़ी देर के बाद अब मैं उसको देख नहीं सकता, वो अब रूपांतरित हो गया। अग्नि उसको रूपांतरित कर देगी, अर्थात उसके फॉर्म को बदल देगी। पहले ठोस द्रव रूप में था, अब गैस फॉर्म के अंदर आ गया। वो अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो गया, पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट हो गया, सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट हो गया, नैनो बन गए। अब वो हमें दिखाई नहीं देगा। और यह भी एक सिद्धांत है साइंस का कि जो भी पदार्थ टूटता है, सूक्ष्म होता है, नैनो होता है, उसकी शक्ति कई गुना मल्टीपल बढ़ जाती है।
जैसे यह गाय का घृत है, गाय का घृत हम 1 ग्राम की मात्रा में, केवल मात्र 1 ग्राम की मात्रा में हम वेदी के मध्य में यज्ञाग्नि में 1 ग्राम की मात्रा में गाय के घी की आहुति प्रदान करते हैं। तो वह 1 ग्राम घृत जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। 1064 गुना 1 ग्राम में से 1 लीटर 864 ml गैस हमें కెమెరా చూసేసుకోండి ఒకసారి. యజ్ఞం చేయించే వాళ్ళు బ్రహ్మ, పంతులు గారు బ్రహ్మ అంటారు. మనం చూసే వాళ్ళం బ్రహ్మ, చేయిస్తురుగా మీరు అందరు, మీరు బ్రహ్మ. 3 రకాల బ్రహ్మలు ఉన్నారు. మనం తొమ్మిదల తెచ్చిన వాళ్ళు బ్రహ్మ అందరం పూజ చేస్తే పంతులు పూజ చేస్తుంది అందరూ. నేను చూస్తున్నా ఉంటాను. నాకు పుణ్యం, మీకు పుణ్యం, పంతులు గారికి పుణ్యం. మామూలు పుణ్యం కాదు. 1000 పూజలు చేసినంత పుణ్యం ఒక वह एक एडिशनल पार्टिकल होते हैं जिसके कारण हमें सुगंधित कमरा हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अपने मूत्र करते हैं और उसमें जब गाय के घी की आहुति देते हैं, केवल मात्र 1 ग्राम घी, तो वो भी 1864 मानी 1 लीटर 864 ml। हम अपने घरों में जो रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं, आप 300 ml के 350 ml का गैस स्प्रे ले लीजिए, रूम स्प्रे इतना मोटा आता है और उसको हमारे पास छोटा सा कमरा है और उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं तो साल भर चल जाता है सामान्य। अर्थात उस एक 300-350 ml के एक रूम स्प्रे से हमें 365 कमरे सुगंधित, वायु शुद्ध नहीं होती, खाली कमरे सुगंधित, एडिशनल पार्टिकल ऐड होते हैं। अब 365 कमरे हम सुगंधित जब वहां कर रहे हैं केवल 300 ml के से, तो आप 1 ग्राम घी जब आप यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं तो उससे 1864 गुना माने 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त हुआ। विचार कीजिए 1 ग्राम घी का परिणाम कितनी बड़ी मात्रा में गैस आई। और वह गैस जब वायुमंडल के अंदर प्रवेश होती है, वायुमंडल के अंदर जाती है, तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो विषाक्त तत्व है, सामान्य रूप से स्प्रे का प्रयोग करने को वायु प्रदूषित होता है। लेकिन यज्ञ में दी हुई घृत और सामग्री जो आहुति की जब वायुमंडल के अंदर भुनी जाती है, हवा जाती है, गैस जाती है, तो वह गैस जब वायुमंडल के अंदर प्रसिद्ध होते तो उसके 3 परिणाम हमें प्राप्त होते। कितने? 3 विशेष परिणाम हमें प्राप्त होते जब हम यज्ञ करते हैं और उसकी गैस जब वायुमंडल के अंदर जाती है। सबसे पहला परिणाम, 3 चीजें निकलती है, कोई भी चीज जलाते हैं तो 3 चीजें निकलती है और 3 मुख्य परिणाम हमें मिलते हैं। 3 चीजें निकलती है, उसमें सबसे पहला होता है पार्टिकल, छोटे छोटे महीन पार्टिकल हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है गैस, वायु हमें प्राप्त होती है। और तीसरा प्राप्त होता है एनर्जी, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। सबसे पहली मैं बात करता हूँ पार्टिकल। जब हमने कोई भी आहुति प्रदान की तो उससे जो पार्टिकल बने, वो पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आ गए, ये पार्टिकल हम देख पाते हैं, ये पार्टिकल है छोटे छोटे 2.5 से लेकर के 10 के रेंज के जो पार्टिकल होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। यह पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो वायुमंडल को इस रूप में प्रभावित करते हैं, वायुमंडल में इस प्रकार से लाभ प्रदान करते हैं कि वायुमंडल के अंदर हमारा 2 प्रकार के कणों से सामना होता है। एक होते हैं धनायन कण, धन आवेशित कण को धनायन बोलते हैं। एक होता है ऋणायन कण, ऋण आवेशित कणों को ऋणायन बोलते हैं। और यह वायुमंडल के अंदर ऑलरेडी व्याप्त रहते हैं। और जहां पर धनायन कण अर्थात जहां शहरीकरण है, भीड़भाड़ वाला इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर धनायन प्राधान्य वायुमंडल मिलता है। अर्थात धनायन प्राधान्य वायुमंडल में जब हम रहते हैं तो और उसको श्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे शरीर में ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। जब हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है तो उसके कारण से सैकड़ों प्रकार के रोग होते हैं। उनको रोग हो चुका है पहले से तो उसके लिए हम कोई उपचार भी लेते हैं तो ज्यादा मात्रा में दवाई और लंबा उपचार के बाद हमें उसमें कुछ
परिणाम देखने को मिलता है। ये ऋणायन कण का प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव। दूसरा होता है वायुमंडल के अंदर ऋणायन कण, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, समुद्र तटीय किनारे हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, नदी के किनारे हैं, झरना में प्रपात आदि है, या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, वन है, अरण्य है, वहां के वायुमंडल के अंदर स्वाभाविक रूप से ऋणायन कण बने रहते हैं, अर्थात ऋण आवेशित कण है वो बने रहते हैं। तो उस वायुमंडल में जब हम रहते हैं, उस कणों को जो अवशोषित करते हैं श्वास प्रश्वास की क्रिया के माध्यम से, तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा कम होती है, और ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा कम होने के साथ साथ ही हमारी एसिडिक बॉडी खत्म हो जाती है, और सभी प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। कोई रोग पहले तो होगा नहीं, यदि कोई रोग हो चुका है और आप उस वायुमंडल के अंदर रहने लग गए, तो आपका वो रोग भी ठीक हो जाता है, दूर होता है। इसलिए डॉक्टर लोग भी कुछ ऐसे क्रिटिकल रोगों के लिए उस व्यक्ति विषय को, उस रोगी विषय को कहते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में, अरण्य क्षेत्र में, या कोई पहाड़ी ऐसा क्षेत्र, जंगल का ऐसा क्षेत्र चुनिए, वहां पे आप साल में 1-2 महीना, 3 महीना या सप्ताह 2 सप्ताह वहां पे बिताइए, तो ये रोग से आपको निजात पाने में बहुत सहूलियत होगी, बहुत ज्यादा आराम से आप रोग से निजात पा पाएंगे। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा, सामान्य भाषा में, आम भाषा में। और यह आयन चिकित्सा स्वाभाविक रूप से, सरल रूप से, सहज रूप से सिद्ध होती है हमारे अपने घर में। हम छोटा सा इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करके संपन्न करते हैं। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इस यज्ञ में, इस हवन में, अग्निहोत्र में होती है, जब हम प्रतिदिन एक स्थान पे यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उस स्थान को हम इतना शुद्ध, पवित्र, सुगंधित और ऐसा ऋणायन कणों से भरपूर बना देते हैं कि जैसे जंगल का वायुमंडल होता है, वन का वायुमंडल होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र का वायुमंडल होता है, जैसे समुद्र तटों का वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां बन जाता है। अमेरिका के एक साइंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट उल्जर, उन्होंने भी इन अनुसंधानों को करके यह सिद्ध करके बताया कि जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, वहां पर प्रति मिलीमीटर हवा के अंदर 200 से 400 कण ऋणायन पाए जाते हैं, और उसका प्रभाव उतना होता है जैसे आप कोई जंगल में रह रहे हो, जैसे आप कोई समुद्र के तट पे रह रहे हो, कोई आप हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हो, तो वहां जैसा आपको वायुमंडल मिलता है, वैसा वायुमंडल आपके घर का निर्मित हो जाता है। ये ताकत, ये शक्ति होती है यज्ञ में। सबसे बड़ा आज जो वायु प्रदूषण का युग है, एक प्रकार से देखें, आज पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में औद्योगिक क्षेत्र और शहरीकरण बढ़ रहा है, जिसके कारण आज बहुत बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण बढ़ चुका है। इस वायु प्रदूषण के कारण आज पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक अपनी जान गंवा है, केवल एक कारण, जिस वायु में हम 24 घंटा श्वास ले रहे हैं, वो वायु प्रदूषित हो जाने के कारण आज 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह से मरे। और इतना छोटा सा यज्ञ यदि हम अपने घर में अपना ले, तो इस 70 लाख लोगों को हम बचा सकते हैं, अपने जीवन को इस वायु प्रदूषण से बचा सकते हैं, इस पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम बचा सकते हैं। आज मॉडर्न साइंस में कोई ऐसा साधन आज हमारे पास नहीं है जिससे हम हो चुके वायु प्रदूषण को ठीक कर सके। और यज्ञ एक ऐसा दैवीय चिकित्सा विधा और विद्या है जिसके करने से हम हो चुके वायु प्रदूषण को भी ठीक कर सकते हैं, और आने वाले समय में भी वायु प्रदूषण ना हो, इसके लिए भी हम इंतजाम करें। नासा के एक वैज्ञानिक, भारतीय मूल के हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, नासा में रहते हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। उन्होंने भारत के कई संस्थानों के साथ मिलकर इसके ऊपर अनुसंधान करना चाहा, और अनुसंधान करके उन्होंने रिपोर्ट दी कि हम यदि एक बार यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अपनी गोत्र करते हैं, तो जो 100 यार्ड क्षेत्र मानी 100 मीटर तक का जो एरिया है यज्ञ के चारों ओर का, उस 100 मीटर तक के एरिया में आगे आने वाले एक सप्ताह तक कोई प्रदूषण यदि वहां सोर्स है तो उसका प्रभाव उसको मानी आने, एक बार हमने यज्ञ किया तो आने वाले एक सप्ताह तक प्रदूषण वहां पे नहीं होगा। और जो वर्तमान में हो चुका है उसको भी वो न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है। सबसे पहले वायुमंडल के अंदर कुछ गैसें होती है, यज्ञ करते कुछ गैसें हम उसमें ऐड कर देते हैं, और जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती तो एक फोटो केमिकल के, मेरे आसपास में सारे पेड़ पौधे रखे हुए हैं, इसके आप सब लोग जानते हैं, इसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है गैस की संपर्क में आता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है, जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है तो कार्बन को यह पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं,
और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। उस फोटोकेमिकल प्रोसेस में वायुमंडल के अंदर ही गैसों में आपस में अभिक्रियाएं होती है और कई बॉन्ड बनते हैं, कोई बॉन्ड टूटते हैं और उसके परिणाम स्वरूप आज जिसको हानिकारक गैस कही जाती है, जिसको प्रदूषित गैस कही जाती है, जिसके कारण से आज संसार में 70 लाख से अधिक लोग प्रतिवर्ष अपनी जान गंवा देते हैं, उन गैसों का वह गैस है SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 2-5 गैसें ऐसी है जो जहरीली है, हानिकारक है, घातक है हमारे जीवन के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। और जब हम यज्ञ करते हैं तो वह गैसें न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यज्ञ के माध्यम से कि प्रदूषित गैसों को न्यूट्रलाइज करना, यह कार्य यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। यह एक बहुत बड़ा अर्थात वायु प्रदूषण से हम बच सकते हैं, वायु प्रदूषण से पर्यावरण को बचा सकते हैं और वायु प्रदूषण को भी खत्म कर सकते हैं। यह इसकी गैसों का विशेष परिणाम है। मैं फिर से मेरी बात के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि जब यज्ञ करते हैं तो 3 चीजें निकलती है, एक पार्टिकल, एक गैस और तीसरा ऊर्जा। पार्टिकल जब निकलते हैं, वह पार्टिकल जब आते हैं तो पहला प्रभाव उस पार्टिकल का मैंने बताया कि वो पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो हमारा घर का स्थान वायुमंडल ऐसा बन जाता है जैसे जंगल का वायुमंडल, हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का वायुमंडल या समुद्र तटीय वायुमंडल होता है। ऐसा वायुमंडल प्रतिदिन यज्ञ करने से हमारे घर में हम अपने आदत से निर्मित कर सकते हैं, पहला लाभ। दूसरा लाभ, आज हम जिस घर में रहते हैं, आज हमारी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है, आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। LED लाइट्स, दीवारों में केबल्स, बोर्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज से लेकर के ना जाने कितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का हम प्रयोग करते हैं और यहाँ तक कार्बनिक चीजों का भी प्रयोग करते हैं। और ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं और इस रेडिएशन के जाल के बीच में हम जीते हैं और वो रेडिएशन का दुष्प्रभाव हमारी मनोस्थिति में बहुत गहरा पड़ता है। चिड़चिड़ापन बढ़ा देता है, स्ट्रेस बढ़ा देता है, डिप्रेशन बढ़ा देता है, हमारी नर्वस सिस्टम को वीक कर देता है, हमें कैंसर जैसी घातक बीमारियों को देता है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे जो पार्टिकल निकले, वो पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर व्याप्त हो जाते हैं, तो वायुमंडल के अंदर वो व्याप्त होने से जो रेडिएशन के सोर्स है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते, खत्म कर देते हैं। डॉक्टर YK विजय जी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में और डॉक्टर ममता सक्सेना जी, डॉक्टर उलरिच बर्ग, कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने अनुसंधान करके रिसर्च करके यह प्रूव कर चुके हैं कि यज्ञ को करने से जो उसके पार्टिकल है जो वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो वायुमंडल के अंदर जो रेडिएशन का सोर्स है वो खत्म हो जाता है। वो यह प्रूव नहीं कर पा रहे कि 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक होता है मित्रता का व्यवहार, अर्थात उस रेडिएशन को अपने अंदर अवशोषित कर लेना, एक होता है शत्रुता का व्यवहार, अर्थात उसको नष्ट कर देना। ये दोनों में से क्या क्रिया हो रही है वो प्रूव नहीं कर पा रहे, लेकिन ये प्रूव हो चुका है कि यज्ञ को करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर के जो सामान्य रेडिएशन होते हैं वो तो दूर होते ही होते, यहाँ तक कि जो एटॉमिक रेडिएशन होता है उसका भी प्रभाव खत्म हो जाता है, दूर होता है यज्ञ के पार्टिकलों के माध्यम। तो कुछ एक रिसर्च ऐसी भी आई है कि जो एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित अन्न थे, चावल थे, उन चावलों को यज्ञ की भस्म, राख, यज्ञ शेष, विभूति को लेकर के पानी में डाला गया और उस पानी के अंदर चावल डाल के 12 या 24 घंटे छोड़ दिया गया और उसके बाद उस चावल को निकाल के सुखाया गया और टेस्ट किया गया, तो उस चावल के अंदर भी रेडिएशन का प्रभाव खत्म हो गया, एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव। दूसरी समस्या से जो आज पूरा विश्व जूझ रहा है रेडिएशन से, उससे हम स्वयं भी बच सकते हैं और पूरे संसार को भी बचा सकते हैं, छोटे से, इसलिए हम स्वयं भी पार्टिकल का दूसरा प्रभाव है, दूसरा लाभ। अब नेक्स्ट, सबसे पहले मैंने कहा था कि पार्टिकल बनते हैं, उसके प्रभाव। दूसरा बनता है गैस है, कोई भी चीज जलती है तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, रूपांतरित। जैसे मैंने कहा कि 1 ग्राम घी जलाते तो 1864 गुना वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, गैस फॉर्म के रूप में वो आ जाती है। जैसे वो गैसें इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका अपना प्रभाव भी विशेष, उसमें विशेष प्रकार की गैसें होती हैं, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के ना जाने कितनी प्रकार की अच्छी गैसें होती हैं। वह जब वायुमंडल के अंदर आती है तो उसके अलग अलग प्रभाव होता है। इसके केमिकल कंपाउंड्स देख करके भी कई सारे रिसर्चों के सामने आया है
कि उस गैस के अंदर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कि जिसको इनहेल करने से, या जैसे हम सामान्य रूप से जो दवाइयां लेते हैं कि बुखार के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाई लेते हैं, उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो लिमिटेड पीरियड के, लिमिटेड एरिया के अंदर, एक लिमिटेड सीमा में वह कंपाउंड ऑलरेडी सभी प्रकार के जो रोगों को दूर करने के लिए हम लेते हैं, ऑलरेडी गैस फॉर्म में हमें इस विधि के माध्यम से कि कितना बड़ा साइंस कि हमें दवाई के लिए अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाई लेनी पड़ती है उस कंपोनेंट में, और यज्ञ को करने से लिमिटेड गैस मात्रा में, लिमिटेड मात्रा के अंदर वो कंपाउंड गैस फॉर्म के अंदर ऑलरेडी हमें प्राप्त होती है सभी प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं। और हमने इन चीजों को लोगों को प्रयोग करा करके देखा है, ऐसी ऐसी कैंसर ठीक हो जाता है, मेरी ठीक हो जाता है, टर्म ठीक हो जाता है, राजा ने कितने कितने भी हम आगे आपके सामने रखने का प्रयास करें कि यज्ञ चिकित्सा विषय के ऊपर जब हम विशेष रूप से सत्र रखेंगे तो यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, यज्ञ से कैसे चिकित्सा होती है और यज्ञ से चिकित्सा कैसे हम कर सकते हैं, और यज्ञ से चिकित्सा करके कैसे भयंकर जो रोग होते हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण, खाली एक देश की बात आई तो मैं एक उदाहरण देकर के मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी आगे जब हम अगला सत्र रखेंगे तो उस समय हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे यज्ञ चिकित्सा। एक केस बहन दिव्या जी मुंबई में रहती है, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कैंसर की गांठ। उस बहन को डॉक्टर लोगों ने चेकअप करने के बाद, एमआरआई, सीटी स्कैन से लेकर जो भी करना पड़ा वो सब करने के बाद उनको पता चला, और उसके बाद कहा कि इसका कोई उपचार इस संसार में नहीं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर गांठ हो जाए और वो भी कैंसर की, और उसके बाद हम उसको ठीक कर पाए। डॉक्टर लोगों ने उनको बिल्कुल जवाब दे दिया, बिल्कुल वो कर दिया। कुछ समय हुआ, एक हॉस्पिटल ने कहा कि हम ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाल सकते हैं, लेकिन हम उस बहन को आपको जिंदा दे पाए गारंटी। अब माता पिता लाचार होते हैं अपने बच्चों को बचाने, उन्होंने ऑपरेशन किया, वास्तव में वो कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद 6 महीने आईसीयू में भर्ती रही, 9 महीना से ज्यादा समय उनका बीत चुका कोमा में। सांस के लिए मशीन लगी हुई, खाने के लिए नली लगी हुई है, पेशाब पानी के लिए नलियां लगी हुई है, बिल्कुल मुर्दा अवस्था में 9 महीने से पड़ी हुई। और बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, जो बड़े बड़े शहर कहे जाते हैं उसके जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, करीब 50 से ज्यादा हॉस्पिटलों को उनके पिताजी ने फाइलों को लेकर के घूमे कि कोई तो मेरे बेटे का केस ले तो ठीक कर। और 30 लाख से अधिक खर्च उस समय में हो, और कोई किसी ने कुछ ना कहा। तो उस समय, उस अवस्था में जब उनके गले में श्वास लेने के लिए भी मशीन लगाई गई, नॉर्मल रूप से श्वास ले लिया, ऐसी अवस्था थी उस समय। हमने इस यज्ञ चिकित्सा को उनको करने के लिए कहा, उन्होंने प्रतिदिन यज्ञ चिकित्सा करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे, यज्ञ को करते 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 जो 9 महीने बीत चुके थे, जो ठीक नहीं कर पाए थे डॉक्टर लोग, मॉडर्न साइंस की जितनी भी टेक्नोलॉजी वो सब प्रयोग करने के बाद 30 लाख खर्च, कंगाल हो गया करीब, ठीक कर नहीं पाए। उसके बाद उनको यज्ञ करने के लिए कहा, यज्ञ करना उन्होंने उसके बेडरूम में जहां पे वो सोती रहती थी, पड़ी रहती थी, वहीं पे यज्ञ करना शुरू किया। 2.5 महीने बीते और ऐसा चमत्कार हुआ, धीरे धीरे उनके शरीर के अंदर जान आने लगी, उनकी उंगलियां हिलने लगी, उनका शरीर पूरा एक्टिविटी में आने लगा। और 3 महीने पूरे होते होते उनकी गले की मशीन भी हट गई, उनकी नली भी हट गई, पेशाब पानी की नलियां भी हट गई, और 6 महीने पूरे होते होते वो नॉर्मल जीने लग गई, चलने फिरने लग गई, समझने लग गई, देखने लग गई, सुनने लग गई, न सुन पा रही थी, न देख पा रही थी, न सूंघ पा रही थी, कुछ, और सारी क्रियाएं होने लगी। ये क्या है यज्ञ की चिकित्सा? ये आप हम आगे बाद में चर्चा करेंगे यज्ञ का चिकित्सा के पहलू के विशेष, लेकिन आज हम विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। उसमें सबसे पहले मैंने पार्टिकल वाली बात की। पार्टिकल जब बढ़ते हैं, रेडियल पार्टिकल बढ़ते हैं तो एक ऐसा वायुमंडल मिलता है जैसे जंगल के अंदर हम रह रहे हो, हिमालय जैसे क्षेत्र में रह रहे हो, समुद्र तट पे रह रहे हो, और वहां जैसा वायुमंडल मिलता है, ऐसा हम अपने हाथों से अपने घर में नहीं करते। बहुत बड़ा एक पहला लाभ है। दूसरा, हम रेडिएशनों से बच सकते हैं, दूसरा सबसे बड़ा लाभ है। तीसरा, जो गैसें बनी उस गैसों से हम वायु प्रदूषण जो हो चुका है उसको खत्म कर सकते हैं, जो होने वाला है उसको रोक सकते हैं, और इन गैसों का विशेष रूप से कंपाउंड के रूप में हमारे सामने आते हैं, उससे हम चिकित्सा करते हैं। तीसरा, तीन साधन जो गैसें होती है उसके यदि लोग तीन प्रभाव महत्वपूर्ण और विशेष
जिससे हम वायु प्रदूषण, जो 70 लाख से अधिक लोग मरता है। और इसका एक प्रभाव और है, इसमें कुछ ऐसी गैसें भी प्राप्त होती है, वो गैसें जो वायुमंडल के अंदर प्रसारित होती है और जब वो वायुमंडल के अंदर सब जगह पे जाती है, हमारे शरीर के अंदर भी श्वास प्रश्वास के माध्यम से जाती है, तो जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण जिसको कहा जाता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य जितनी भी बीमारियां हैं, पैथोजेनिक बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज जिसको कहा जाता है, जितने भी सूक्ष्म जीवों से माइक्रोब से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से होने वाली जितनी भी बीमारियां, उन हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को भी हम नष्ट कर सकते हैं। वह ताकत, वह शक्ति इस यज्ञ में, इस हवन में, इस अग्नि में। और हमने यहाँ पतंजलि योगपीठ PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस प्रकार के कई रिसर्च अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि जो हमारे घर में पाई जाने वाली छोटी काली मिर्च हमारे घर सबके घर में होती है, ये काले तिल हमारे सबके घर में होते हैं, यह चावल हमारे सबके घर में होते हैं, ऐसे कुछ ऐसी औषधियां जो हमारे सबके घर में होती है बिल्कुल आदि, और हमें इन औषधियों को जला करके उसकी धुनी करके और उसको बैक्टीरिया आदि के ऊपर इस प्रकार का प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि इसका धुआं करने से, इसका हवन करने से, यजन करने से वह बैक्टीरिया, फंगस आदि नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियां और उसके कारण होने वाली मौतों को हम देखें तो 2 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जान गवा बैठते हैं केवल माइक्रोबायोलॉजी का छोटा सा यज्ञ हम अपने घर में अपना लें। इस छोटे से यज्ञ से हम 2 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं और 2 करोड़ लोगों को जीवन बचाने के साथ साथ 70 लाख लोगों को वायु प्रदूषण से बचाने के साथ साथ लाखों लोग जो रेडिएशन के कारण प्रभावित होते हैं, कैंसर से लेकर बीमारी, उनको बचाने के साथ और इनके कारण होने वाले जो मेडिकल खर्च है दवाइयों के ऊपर 1000 करोड़ रुपए बहाए जाते हैं, उन खर्चों को भी बचा सकते हैं इस छोटे से हवन यज्ञ को हमने भी अपने घर में। ऐसी ताकत, इस शक्ति इस यज्ञ में देखिए माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण जो है उसको भी, और आज हम इस कार्य के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और सारे कार्य के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है, अलग भारी जो वायरस है, तो सामान्य वायरस तो इससे नष्ट होते ही होते हैं, लेकिन जो भारी वायरस होते हैं उसके ऊपर भी अभी पतंजलि योगपीठ आप सब लोगों को हर्ष होगा कि हम इसके ऊपर भी अभी यज्ञ के माध्यम से रिसर्च करने का पूरा प्लान बना चुके हैं और बहुत कम समय में ही हम सब लोगों के सामने यह रिजल्ट होगा कि हम यज्ञ के माध्यम से किस प्रकार से कोरोना जैसी भयंकर महामारी से, बीमारी से भी बच सकते हैं। और हमने मुंबई जैसे शहरों में भी इस कोरोना काल के अंदर जब कोरोना चरम सीमा पर था उस दौरान सैकड़ों परिवारों को यज्ञ करा करके कोरोना ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यज्ञ के माध्यम से हम ऐसी जो वायरल डिजीज है उनको भी कंट्रोल कर सके, उनको भी दूर कर सके। कुछ जो गैस निकलती है उसके प्रभाव, और तीसरा होता है ऊर्जा, एनर्जी। कोई भी चीज का विखंडन होता है तो उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। जिस स्थान के प्रति यज्ञ होता है वह स्थान ऐसी दैवीय शक्ति से, ऐसी शुभ शक्ति से, ऐसी पॉजिटिव शक्ति से, एनर्जी से भर जाता है कि वहां आने मात्र से हमें आह्लाद, मन में शांति प्राप्त होती है, हमारा तन की चिकित्सा होने लगती है, हमारे मन की चिकित्सा। इसलिए यज्ञ से तन और मन दोनों की चिकित्सा होती है। इसलिए आयुर्वेद में केवल तन की चिकित्सा नहीं बताई, तन के साथ मन को भी स्वस्थ की परिभाषा करते हुए आयुर्वेद ने कहा प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ के विधि। प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिय और मन जिसका, उसको स्वस्थ करना है। ऐसा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्राप्त करने की सबसे श्रेष्ठ विधा और विद्या को है यज्ञ। इससे हमारा तन भी स्वस्थ होता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, इससे हमारा मन भी शांत होता है, एकाग्र होता है, सहज होता है, हमारे मन की भी चिकित्सा है, तन और मन दोनों की चिकित्सा होती है। इसी यज्ञ से हमें पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के आधार पे हमें अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियां या अगले आने वाले जो जन्म है उसमें हमें कैसे माता पिता, गुरुजन, स्थान, शरीर से लेकर के कैसी सुख सुविधाएं और उन्नति की परिस्थितियां मिला, वो सब भी उस पुण्य के आधार पे होते हैं। पुण्य को प्राप्त करने की यह, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा यह पुण्य की कृषि है। आप जैसे कृषि में कुछ दाना डालते हो हजारों गुना होकर के हमें मिलता है, ऐसे ही यज्ञ में थोड़ी सी आहुति दो, हजारों गुना करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ताकत सबसे बड़ा पुण्यों को प्राप्त करने की, पुण्यों को जीवन से भरने की विधा और विद्या यह यज्ञ है। इसलिए इसके साथ साथ
पुण्य को प्राप्त करना तो देह है, लेकिन उसके साथ साथ देवी शक्तियों का पूजन। जिन देवी शक्तियों ने हमें सब कुछ दिया, उन देवी शक्तियों का अर्चन पूजन करने की विविधा और विद्या सर्वश्रेष्ठ मूल हवन है, अग्निहोत्र है। अग्निर्वय देवानां मुख, देवताओं का मुख है यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र, इसलिए हम देवी पूजन भी इसी यज्ञ के माध्यम से करते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इस यज्ञ को करने से वायु प्रदूषण भी ठीक होते हैं, बीमारियां भी मिटती है। इस यज्ञ को करने से पॉजिटिव एनर्जी और हमारा घर भी शुभ बनता है, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन उसके साथ साथ यह यज्ञ से हमारा यह भव भी और अगला भव भी सुधर जाता है। यह यज्ञ को करने से जड़ और चेतन दोनों में प्रभाव पड़ता है। जड़ जगत के ऊपर भी इसका पॉजिटिव सत्वों से युक्त होता है, चेतन जगत भी सत्व से युक्त होता है। यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कृष्ट अति मानस चेतना की ओर हमें अग्रसर करता है। यज्ञ हमें तन मन प्राण से लेकर के संपूर्ण पर्यावरण का संतुलन शोधन संरक्षण करने की सबसे श्रेष्ठ विधा और विद्या है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करबद्ध निवेदन करता हूं कि आइए सूची जीवो अग्नि सहस्त्रार्थ पवित्र ज्वाला वाली यह यज्ञ में हजारों लाभ देने वाली जो हमने आज देखे जाने सुने सीमित नहीं। दृश्यम अल्पम अदृश्यम अनंतम, जो हम देख पाते हैं बहुत कम होता है, जो नहीं देख पाते जो हमें इस लाभ बहुत ज्यादा लाभ देने वाला। और वर्तमान की यह आवश्यकता है, वायु प्रदूषण, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, रेडिएशन जैसी ना जाने कितनी समस्याओं से आज पूरा संसार जूझ रहा है। समस्याओं के बीच से गुजर रहा है। इस बीच में संसार को यदि बचाना चाहते हैं, लोगों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहते हैं, अपने जीवन में हम पुण्यों को प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन को मानवीय चेतना का उत्कृष्ट मानस चेतना की ओर हम अग्रसर करना चाहते हैं, तो आइए हम इस यज्ञ के साथ जुड़े, स्वयं यज्ञ करें, जीवन में जगत में दिव्यता का आधान करें। इसी आह्वान के साथ आप सभी योगी याजी साधक भाई बहनों को सादर नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज आप सभी लोग जुड़े और विशेष रूप से आपने मेरे साथ मिलकर के यज्ञ भी किया, हवन भी किया। यज्ञ हवन के साथ साथ आप सब लोगों ने कुछ जानने का प्रयास भी किया और विशेष करके आज हमारे साथ आदरणीय भाई साहब राज्य प्रभारी श्रीधर राव जी, आदरणीय भाई किशोर जी और सारे जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, राज्य प्रभारी, सह राज्य प्रभारियों से लेकर के जो भी सब हमारे साथ जुड़े हुए साधक भाई बहन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी लोग सीधा बैठे हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए और परम पूज्य सभी स्वामी जी महाराज, परम पूज्य सभी आचार्य जी, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज हम सब लोग मिलकर के इस देवी विद्या योग आयुर्वेद यज्ञ को हम जान पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, अपने जीवन में उतार पा रहे हैं और अपने जीवन को इस जगत को दिव्यता से पूर्ण कर पा रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आइए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इसी प्रार्थना के साथ शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सभी को सादर नमस्ते, सादर प्रणाम, सभी को ओम। स्वामी जी महाराज को पूरा तेलंगाना की ओर से कोटि धन्यवाद। आज हम सब लोग बहुत
है, क्योंकि आपके माध्यम से ये समझ में आया, सभी लोग हर रोज दैनिक अग्निहोत्र कर सकते हैं, ये समझ में आया। और हम सब संकल्प लेंगे, पूरा तेलंगाना की सभी योग साधक संकल्प लेंगे आपकी मार्गदर्शन में, पूरा तेलंगाना में हर गांव में हर घर में ये दैनिक अग्निहोत्र को ले जाएंगे और हर रोज इसका साधना करने की अभ्यास इसका स्वामी जी के एक साथ हाथ जोड़कर गोविंद महाराज को स्वामी रामदेव बाबा को हम तेलंगाना की ओर से एक साथ राजाय नमो नमः। ओम यज्ञराजाय नमो नमः। 5 రౌండ్లు కొట్టు